आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश हैं खबरों की तफसील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि जो चीज़ें बायस तशवीश है उनमें अदलिया का बुनियादी ढांचा होना और खाली असामी को पुर करना और इंसाफ तक रसाई सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब अदालतें और इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तियाब रखी जाए। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया पर बोझ है और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मामले आते हैं और एक केस में न जाने कितने साल लगते हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने ये बातें तेलंगाना में जुडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए किया। Performance of any organization delivering any form of service must be assessed in terms of its effectiveness in achieving its goals. First, after taking over as a Chief Justice, I have taken two important issues which is necessary, I thought which is more important. That is, one is the infrastructure of the judiciary, second is filling up the vacancies. The reason is access to justice is possible only when we provide sufficient number of courts as well as infrastructure so the people, the litigant public can approach the institution for justice. At the same time, our judiciary is overburdened. I don't want to bother all of you by giving the figures, statistics, etc. But it is admitted fact, there is no dispute. The pendency is increased, cases are coming out. The reasons are 100. I don't want to say that also. In the circumstances, it is the feeling that once if you go to court, how many years it takes to get the results is a big question mark. Wherever you go, the first question asked is how many days it takes to decide a case. And thereafter, the hierarchy of appeal system in the country, it takes more time. So I thought that it is necessary that we must appoint as many judges as possible. I don't want to keep even one vacancy, either in the high courts as well as in the Supreme Court or the district judiciary, and also strengthen the system. I requested the government of India, after a detailed survey by the Supreme Court registry about the infrastructures in the different parts of the country, different courts, it was found is very inadequate. You are all fortunate because Telangana state as Chief Minister and the government has last 8 years, whatever you are asking they are giving. So you got good number of courts, court buildings. Still it requires more facilities, I agree. And today he has announced all that. I will come back to that later on. The first step when come to the Telangana state is concerned, when the file is pending last 2 years for increasing the number of judges from 24 to 42, I have immediately cleared it, and fortunately we appointed 17 fresh appointments after I have taken oath. Last time there are 12 recommendations was made, out of that 2 was pending. आलमी वबा कोरोना वायरस और रूस यूक्रेन जंग की वजह से जहां हर एक मुल्क की मीशत मुतासर हो रही है, पर हिंदुस्तान की कई रियासतों में जिनमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दीगर कई रियासतें शामिल हैं में कोयले की कमी वाक़ा हुई है। बिजली के मरकजी वजीर ने कहा है कि जिस तेज़ी से मांग बढ़ रही है उस तेज़ी से सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कोयले की कमी वाक़ा हो रही है। तो पंजाब में नहीं हुई है,
और उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हुई है। कहाँ कहाँ हुई है मैं बता देता हूँ। एक है आंध्र प्रदेश में थोड़ा कमी हुई है, एक राजस्थान में कमी हुई है, एक तमिलनाडु में कमी हुई है, ये सब है। तो कमी के 2-3 कारण। एक तो है कि वो जो परिस्थिति उस राज्य की जो परिस्थिति उससे संबंधित है। एक तो है तमिलनाडु, वैसे उनका ज्यादातर बहुत सारे प्लांट हैं जो कि आयातित कोयला पर निर्भर था। उसके बगल में आयातित कोयला सस्ता पड़ता है। आज के दिन में आयातित कोयले का दाम हो गया है $140 पर टन, 12-13 हजार रुपये पर टन। हमारा देशी कोयला मिलता है 1000 रुपये पर टन। ये दिक्कत है, पानी मिलने में भी दिक्कत है। फिर भी हमने कहा कि आपका इम्पोर्टेड कोल पर बेस तो खरीद। दूसरा आंध्र प्रदेश का भी यही है, और कुछ ये रेलवे के द्वारा वहां पहुंचाने में जो विलंब हो रहा है वो। तो उसमें एक और है, आंध्र प्रदेश को बिजली मिलती है SCRC सिंगरैनी से। सिंगरैनी जो कोलफील्ड है उसमें भागीदारी है कोल इंडिया लिमिटेड का और आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार का। वहां पर एक्सप्लोजिव की कमी हो गई थी। दुनिया में जो यूक्रेन वॉर हुआ, जो कोविड के कारण दिक्कत हुआ, उसमें एक्सप्लोजिव की कमी हो गई, ये है। लेकिन ये ओवरऑल अगर आप पूछेंगे, ओवरऑल हमारा डिमांड जैसे हमने कहा करीब 8-9% बढ़ा है। 197 से लेकर के 1,97,000 से लेकर के 2 लाख मेगावाट तक अब रहा। इस बार जितना तेजी से डिमांड बढ़ा है उतना तेजी से डिमांड और पहले कभी नहीं है। तो जो हमारा कोयले का रिजर्व है वो कम, आज के दिन में 9 दिन का, जबकि रहता था हमारा 14-15 दिन का। तो ये बात सच है कि डिमांड बढ़ा है, उस हिसाब से कोयले का सप्लाई उतना तेजी से बढ़ नहीं सकता है। नया खदान ये चालू करने। जोधपुर जयपुर कौमी शाहराह पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि राजस्थान के जोधपुर जयपुर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रात 12:30 बजे के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो में तसादुम हुआ, जिस दौरान बोलेरो में सवार एक ही खानदान के 6 अफराद जान बाक हुए जबकि मजीद 3 जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल किया गया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी उनके इलाज के इंतजामात देखने MDM अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि चोरू का रहने वाला ये खानदान नागा कल देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। देखिए, रात 12:30 बजे की घटना है। जो एक्सीडेंट हुआ एक बोलेरो और ट्रेलर का। तो नागनीची माता नागना ये दर्शन करने जा रहे थे, तो उसमें हुआ 9 लोग बोलेरो में थे, जिसमें 6 लोग ऑन द स्पॉट डेथ की हमारे पास जानकारी है और 3 लोग यहाँ पे MDM में भर्ती हैं। हमने डॉक्टर से अभी बात कर लिया है, पेशेंट से भी बात करी। तीनों जो यहाँ पे एडमिट हैं वो अभी स्टेबल हैं और CT स्कैन वगैरह रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इनके परिजन जो हैं, इनके जो अटेंडेंट हैं, उनसे भी बात हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। डॉक्टर्स को हमने जिला बडगाम के ताजखुल खान साहब में सरकारी स्कूल में तदरीसी अमले की शदीद किल्लत को लेकर लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। एक तरफ से सरकारी सतह पर जगह जगह ये प्रोग्राम किया जाता है और वालिदैन से इल्तिमास की जाती है कि अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं, जहाँ पर सरकार काफ़ी स्कीमों के तहत बच्चों को फ़ायदा पहुँचा रही है। लेकिन वही ज़मीनी सतह पर उन्हीं सरकारी स्कूलों की जहां हालत नहायत ही अबतर है और तदरीसी अमले की शदीद किल्लत की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी मनफी असर पड़ रहा है। खान साहब ताजखुल के मिडिल स्कूल में कई बरसों से तदरीसी अमले की शदीद किल्लत की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। वालिदैन का कहना है कि 120 से ज़ायद बच्चों के लिए सिर्फ 5 उस्ताद तैनात है, जिनमें एक उस्ताद मुकम्मल तौर पर कागजी कार्रवाई में लगा रहता है और बाद 4 उस्ताद जिनके लिए 100 से ज़ायद बच्चों और 8 जमातों को पढ़ाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने महकमे तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द मिडल स्कूल में असातिज़ा की तैनाती अमल में लाई जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई पर मनफी असर ना पड़े।
यमो पांचों मज स्टाफ यम असल टीचर तम वनकस कहें मेथ टीचर साइंस टीचर सह कहीं तम नियक वापस तम वनकस द्रागट साइंस टीचर तत साइंस पढ़ना तम ये साइंस पढ़ना वो कहें ये मेथ टीचर कहें इसलिए स्टाफ कमी स्टाफ गस वापस यून ये देवार यप आर वसान खतर रोजान बचन गाड़ हूं खतर कहें प्रॉब्लम गोच प्रॉब्लम स्टाफ 120 प्लस 120 प्लस बच्चे ये पढ़ान तो मगर टीचर पे 5 टीचर पत्मे लटि 2009 मज स्कूल गोमुत अपग्रेड तो लगे टीचर 2 RT क्रेशपोर रोजान ब्या रोजान खान सोबन मैथ तो साइंस तम पे गई मज 2-3 वरी तो अकिस 2 वर्यन पढ़नो तमो ये न्यूक ये मैथ टीचर ये रयार गोज थ चेक शेरा कोरुक 3 वर्यन अपरी लापता 3 वहर ओनुक सह पत वापस गो अथ मज कोविड रोड 2 वर्यन स्कूल बंद तो हेक बच्चे सन पढ़ कहें तम पे आई टीचर दोक प्राइवेट स्कूलन मज पान बच्चे दोक ना तुम तोरियो ये बच्चे सरकारी स्कूलस इन प्रेथ कह फैसिलिटी वर्दी तरान खेन चेन सोरे कह फीस कहें तो तुम अनिक सा बच्चे त्रो हेकनस अन प्राइवेट स्कूलों मज बच्चे कड़ित तो त्रो ये स्कूलस मज अत वनकस हेकान पढ़ कहें क्या ये मतलब टीचर कहें 5 टीचर 120 प्लस बच्चे तो 5 टीचर क्या पढ़ान तम पे ब्या टीचर खान सोबन साइंस टीचर तो ओतर न्यूक सह द्रगड़ स्कूलस दोक तत साइंस पढ़ान ये तिमन स्कूल कन बच्चन साइंस पढ़ान तो पढ़ुन तो सान बच्चन पढ़ुन साइंस गो नंबर 1 नंबर 2 वनकस 5 टीचर ये दोम प्रॉब्लम टूरिस्ट रोड यप कन पकान तुम वो ये तो रोजान बच्चन अमुक खतर टीचर 5 इन पे बच्चन रश तक कि मतलब क्या हादस गोस अल्लाह ताला बचाइन पेश दोम सवाल यप दरिया पकान तो रोजान यप लक्न बच्चन खतर ओपर कन ये कब्रिस्तान तो रोजान तप कन बच्चे सुंद खतर यप कन बोना छाप अगर तुम अप कन वो तो हेकू अप वो तो रोजान बार बार इन बच्चन ये प्रॉब्लम तो प्रेथ जाए देवार आई दिन प्रेथ जाए तो मगर ये स्कूलस आई देवार दिन कह यप कन रास खंड दिस मज तो ओतर किस दमस तान गेट लागन तो ओतर लोग गेट यप महकमा सयाहत ने तमाम सयाहती खदमात फराम करने वालों को मशवरा दिया है कि वो सयाहों से किसी भी तरह की धोखाधड़ी या ज़्यादा कीमत वसूल करने से बाज रहे। महकमे के एक तर्जुमान ने कहा है कि अगरचे ये अच्छी बात है कि हम सयाहों की आमद का एक ज़बरदस्त सीज़न देख रहे हैं, लेकिन ये शराकत दारू और महकमा पर फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सयाहों की हाज़िरी की शाइस्तगी मुनासिब तरीके से और उनकी खदमात के लिए मुनासिब मुआवजा लिया जाए ताकि वो कश्मीर जैसी खूबसूरत यादों के साथ वापस लौटे। सयाहों के एक ग्रुप की तरफ से मौसूल होने वाली एक मखसूस शिकायत है। महकमे ने मुतलका यूनिट होल्डरों के खिलाफ दीगर मुजरमाना कार्रवाई शुरू करने के अलावा किसी भी तिजारती सरगर्मियों को शुरू करने से सर्विस फराम करने वाले को ब्लैकलिस्ट किया है। टूरिस्ट पुलिस ने मुलजिम यूनिट होल्डरों को भी पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। शराकतदारों को महकमे की एक पुरानी टैगलाइन की याद दिलाते हुए सयाह आपके हुस्न सलूक का तालिब है, उसको खुश करना आप कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी में 4 चांद लगा सकते हैं। मकबूजा मशरकी बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के अंदर इजरायली फौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान ज़बरदस्त टकराव हुआ है। उस दौरान मस्जिद अक्सा के अंदर टीयर गैस का धुआं देखा गया है। इस्लाम के तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम पर इजरायली फौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई है। तशद्दुद में इजाफा मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान और यहूदियों के पास अवर के त्यौहार के आगाज से पहले होता है, जो यरूशलेम के पुराने शहर में मुक़द्दस मकामात के गिर्द तनाव को बढ़ा देता है। इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से मस्जिद के सहनों और नमाज गाहों के अंदर रबड़ की कोविड स्टील की गोलियां, आंसू गैस और स्टेन ग्रेनेड फायर किए जाने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। 20 अफराद को मस्जिद से निकालकर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जिनमें 7 अफराद के जिस्म के ऊपरी हिस्से में जख्म हैं। दूसरी जानब इजरायली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि सुबह 4 बजे के करीब दर्जनों नौजवानों ने फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और गजा की हुक्मरान हमास ग्रुप दोनों के झंडे उठाए हुए इलाके में मार्च करना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक मार्च करने वालों ने पथराव और आतिशबाजी की, जबकि मजीद झड़पों की तैयारी के लिए पथराव और दीगर अशिया को जखीरा किया।
पुलिस ने कहा कि वो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होने से पहले सुबह की नमाज खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ मुजाहिरीन ने उनमें से कुछ ने नीचे की मगरबी दीवार पर पत्थर फेंके हैं। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश न होने से मुतल्लिक तर्जुमान पाकिस्तानी फौज के बयान से मुतफिक है। महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बड़ा वाज़ह है, उन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिया में साजिश का लफ्ज़ नहीं। DGISPR का कहना था कि अफवाहों की बुनियाद पर बेबुनियाद किरदार कशी करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, यह मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ है। Last night regarding the selection of Prime Minister Shehbaz Sharif. For almost 75 years, the relationship between the United States and Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with Pakistan's government to promote peace and prosperity in Pakistan and the broader region. And in that spirit, we've congratulated Prime Minister Shehbaz Sharif on his election by the Pakistani parliament, and we look forward to working with him and his government. So former Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, still blaming US for his ouster, while his supporters are organizing anti-US protests here in America, like in different states. Yesterday in DC, his supporters attacked on Pakistani-American journalists and a few community members who disagree with them. So do you have any message for them who are organizing anti-US protests here in America, even when you rejected all those claims and White House also rejected all those claims? Our message has been clear and consistent on this. There is no truth whatsoever to the allegations that have been put forward. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. We support broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. So one last question, if you allow me, please. So today, the Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि वो आला अमरीकी हुकाम को यूक्रेन भेजने पर गौर कर रहे हैं। सहाफ़ियों की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो आला हुकाम को यूक्रेन भेजना चाहते हैं कि उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. कनाडा की वज़ीर दिफा अनीता आनंद ने ऐलान किया है कि पोलैंड में यूक्रेनी महाजरीन की आबादकारी में मदद के लिए कनाडा फोर्सेस के एहलकारों को तैनात किया जाएगा। ये फौजी यूक्रेन महाजरीन की देखभाल और राबता कार्य में मदद करेंगे, जिनमें से 2.6 मिलियन से ज़्यादा फरवरी में रूस के हमले के बाद से पोलैंड फरार हो चुके हैं। 2 months ago, CFP Trenton has served as the departure point for much of the military aid that Canada has been providing to Ukraine to fight and win this war. Malgré une situation en constante évolution, je sais que vous restez prêts à continuer à défendre le Canada et nos alliés, amis et partenaires. Je me joins à vous aujourd'hui pour annoncer la prochaine phase de la réponse des forces armées canadiennes à la guerre en Ukraine. To help address the growing crisis at the border between Poland and Ukraine, I am announcing today the deployment of up to 150 Canadian Armed Forces personnel, with approximately 100 personnel in the immediate term who will assist Poland's efforts to support and care for Ukrainians fleeing violence.
The majority will come from Edmonton and Kingston and through here in Trenton in the coming days. Pour aider à faire face à la crise à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, j'annonce aujourd'hui le déploiement de 100 membres des forces armées canadiennes qui pourraient être augmentés jusqu'à 150 membres pour assister la Pologne dans ses efforts de soutien envers les Ukrainiens qui fuient la violence. La majorité du groupe partiront d'Edmonton et de Kingston pour transiter ici à Trenton dans les prochains jours. Now, over the next few months, our military will provide support across 3 lines of effort. First, we will be deploying armed forces members to reception centers across Poland to assist with the immediate care and processing of Ukrainian refugees. This is the largest component of our deployment to Poland. Our people will provide general support, spiritual services, and limited medical care enabled by Ukrainian-speaking CAF personnel. Second, we will deploy a number of members in support of a Polish-led humanitarian assistance task force. We will work with military members and other government representatives from Canada, from Poland, and from other allies to रूस यूक्रेन जंग के जहां 50 दिन मुकम्मल हुए वहीं आज 91 रोज भी जंग जारी है और आज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में सुबह जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं जबकि फ़िज़ाई हमले के सायरन भी बज उठे। कीव, खिरसन, मशरक़ी शहर खारकीव और आसपास के इलाकों में होने वाले धमाकों के बाद फौरी तौर पर नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। ये धमाके उस वक्त सुने गए जब गुज़श्ता रोज़ रूस के एक बहरी जंगी जहाज़ को बहर अस्वद में धमाके से शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने वाक़ई की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि रूस के बहर अस्वद में सोवियत दौर के परचम बरदार जहाज़ को उसके एक मिसाइल ने निशाना बनाया। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा था कि जहाज़ उस वक्त डूबा जब उसे बंदरगाह की तरफ ले जा रहा था। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक बहर अस्वद में बहरी जहाज़ में आग पर काबू पा लिया गया और अमले को भी बहिफाजत निकाल लिया गया। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने दुनिया के नामवर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट और सफेवल के सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर को खरीदने की पेशकश कर दी है। एलन मस्क ने कंपनी खरीदने की पेशकश की है और अब तक की बेहतरीन और ख़त्मी पेशकश को भी कहा है। ट्विटर पर ही अपने पैगाम में एलन मस्क ने एक पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने तहरीर किया है कि मैंने पेशकश कर दी और साथ में एक लिंक भी शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने $54.20 फी शेयर की पेशकश की जिसके मुताबिक ट्विटर की मजमूई कदर 43 अरब 40 करोड़ डॉलर हैं। दूसरी जानिब ट्विटर बोर्ड ने कहा है कि वो इस मामले की बारीक बीनी से जायजा लेंगे जबकि उन्होंने एलन मस्क की इस पेशकश को गैर मनकूला करार दिया है। बोर्ड का यह भी कहना है कि वो कंपनी और तमाम स्टेक होल्डर्स के बेहतरीन मफाद को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करेंगे। ख्याल रहे कि मस्क की जानिब से यह पैगाम ऐसे वक्त में सामने आया जब उन्होंने एक रोज़ कबल ट्विटर बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था। एलन मस्क का कहना है कि उन्होंने ट्विटर में इसलिए सरमायाकारी की है क्योंकि उन्हें यकीन है कि इस प्लेटफार्म में दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय की सलाहियत है जबकि उनका मानना है कि आज़ादी इजहार राय जमहूरियत के काम करने में समाजी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब से इस प्लेटफार्म में सरमायाकारी की तब से उन्हें यह अंदाज़ा हुआ है कि ये कंपनी अपनी मौजूदा सलाहियत में न समाजी खिदमत दिखा रही है और ना ही इस पर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के 100% शेयर खरीदने की पेशकश करता हूं जिसकी कीमत $54.20 फी शेयर होगी। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।